Hi, hello, and hearty welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited's weekly webinar. Well, thank you so much for joining us and for your patience till now. Let's have the introduction before moving ahead to the topic, towards to the topic. Yes, so there are new joinees always every week, so it's very important and essential that they must know what Rajlakshmi Solutions Private Limited is into and what they are, what are the services or what they exactly do. Yes. So the introduction, let's get into the introduction. So basically, we are into software sales, services, development, customizations, etc., etc. So now let's see the products what we are into, and then let's see what are the services we are into. So basically, we are into Tally Prime, an accounting software, and we are into like SAP Business One, a key for every business solutions, and we are into Bitrix CRM, an international software which completely maintains and manages the organization in terms of task, project management, and in terms of leave management, HR systems and services, etc. And along with that, we are into Skill India, a government project which is specifically concerned towards the education and employment of children. Yes. And beyond this, in this current scenario, the COVID scenario has changed the working styles and the structure of every organization. So, with reference to that, we are into cloud, tally on cloud. Basically, this is in the highest demand. Sit anywhere and everywhere, just rock your work and without hassle, just manage your work in a right way. Yes. And apart from this, if you specifically talk about services, we are part of HR services and digital marketing services. The digital platform has taken a big boom in this current scenario. It is very essential that the market must know that every organization is actually working from home as well. There is no distraction, whether it's work from home or work from office. So just to have a good reach and just to show the market that you are actively working, it's very, very essential to manage and maintain your digital marketing platform. So we are a service provider of digital marketing as well as the HR services. Managing a complete HR system for an organization is very, very important. That too, as I already said, the situation and scenario has covered most of the things and changed the things. So it is very, very essential. According to the virtual working, the HR system and the process has to be changed. So we are part of HR system, HR processes, as well HR services and digital marketing services. Well, and apart from this, we are we are actually giving much and much of the presenting much and much of the videos onto YouTube channel, and at the same time we are trying to create an academy system into the YouTube channel. So it's very, very essential that if you really wanted to learn something, or if you're new, if any of your office staff is new to Tally system, you can really refer them to our YouTube channel. I think that is really going to be very, very productive. All right. So basically, this is what Rajlakshmi Solutions Private Limited is like upgrading, or if you really wanted to have any kind of system, you are really welcome onto our organization to have good support as well as onto choosing the right software. Well, so coming back to today's topic, before entering to the topic onto webinar, I would like to give you instructions. See, basically, this webinar is getting recorded, and this will be updated into YouTube channel by a couple of days. So if there is any late joinees, or if there is any confusions or distractions in understanding the concepts onto today's topic, request you to please watch our YouTube channel, subscribe our YouTube channel. The link is already provided, and you can get the clarity onto the manufacturing process in Tally Prime. Yes, exactly. Well, and along with this, I must say, if the ratio of conversation of Tally ERP9 to Tally Prime is really, really matters, and the ratio is really in progress. Like, it is going on to the positive side. The percentage is increasing. So if you have not still converted your Tally ERP9 to Tally Prime, request you to please convert your ERP9 to Tally Prime, because the upcoming features is going to completely depend on Tally Prime. So आपको कोई भी फीचर्स लूज नहीं करना चाहिए, और साथ के साथ
टैली प्राइम में बहुत सारी ऐसी फीचर्स है जो सही में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके टाइम सेव करने के लिए एज वेल एज आपके एनर्जी सेव करने के लिए. सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. एक जब हमें फ्लेक्सिबल चीज मिलती है हमें उसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यस. So इसके साथ साथ अभी आज के speakers है. Today we have very good speakers with us. So like before entering to the speaker, yes, of course, today's wonderful topic is all about manufacturing process and Tally Prime. Yes. So the speakers are here. So let us welcome the speakers. So Ms. Simran, are you here? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Hi, Simran. Good evening. Thank you so much for joining and hearty welcome to the session. So coming back to the next speaker, that is Mr. Krishna. Mr. Krishna, are you here? Yes, ma'am. Hi, good evening. Hi, Krishna. Good evening. Thank you for joining and hearty welcome to the webinar. Well, now Yes, we ma'am. have one more resource person. So, Mr. Bhagwati, are you here? Yeah. Good evening, Deepa and everyone. I'm here. Hi, Mr. Bhagwati. Good evening, and thank you so much for your valuable time and thank you for joining us. Thank you. Yes. So the speakers are ready. I think I really don't want to take much of your time now. Let's move ahead onto the topic. और मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ, प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वेबिनार, बिकॉज हम एंड ऑफ द सेशन में बहुत सारी अपडेट्स आपको देने वाले हैं. इट माइट बी अ टिप्स, or it might be information regarding offer, or it might be many other concepts which would be really useful for you. So request you to stay tuned till the end of the webinar. And now let's move ahead on to today's topic. So it's over to you, Ms. Simran and Mr. Krishna. Request you to please introduce yourself and then move ahead on to today's webinar topic. It's completely over to you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Ms. Simran Jeanwal, representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Heartily welcome in today's webinar session. Next slide, ma'am. This is our complete Raj Lakshmi team. So our today's topic is manufacturing process in Tally Prime. So let's see what is exactly manufacturing process. Manufacturing is the production of goods using labor, machine, tools, and chemical or biological processing of or formulation. The term may be referred to the range of the human activity from handcraft to high-tech, but it is most commonly applied on industrial design in which raw material from the primary sector are transformed into finished goods on a large scale. Such goods may be sold to the other manufacturer for the production of a more complex product such as aircraft, household appliances, furniture, sports equipment and automobiles. तो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? जितने भी बिजनेसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्जन का जो उनका प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है उनका, जिससे हम कोई भी किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने में हमें प्रोडक्शन में हमें कितना गुड्स लग रहा है, हमें कितना लेबर उसके अंदर लग रहा है, लाइक प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से लेके मटेरियल स्पेसिफिकेशन तक का जो भी प्रोसेस होता है इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट स्लाइड मैम. Next is how to manage inventory in manufacturing. Use of inventory in manufacturing is a common aspect of businesses. If you are deal with manufacturing product and therefore maintain inventory, you can manage all of this using Tally Prime. Tally Prime में completely जो manufacturing का जो inventory का part है, जब हम किसी product को manufacture कर रहे हैं तो जब उसका raw material invert होता है तो वो हमारा स्टॉक या फिर हमारी इन्वेंट्री होती है जब तक वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो पर्टिकुलर जितना भी हमारा पार्ट है, हमारा बिल ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले जो हमारा रॉ मटेरियल इन्वर्ट हो रहा है तो उसका सारा प्रोसीजर आप टैली प्राइम में मेंटेन कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड मैम.
Next one is bill of material, most important topic. A bill of material is a list of constituent items along with the quantity detail that can be allotted for the manufacture of a certain product, byproduct, or likewise. This facilitates immediate reduction of stock of item automatically. The process of listing item that make the another item made possible in Tally by enabling the bill of material facility. Bill of material BOM is created only for those items that are being assembled in-house. Therefore, you need to be specify a BOM at the time of creating a stock item or while entering into stock item. For trading item, you don't need BOM. Exactly BOM का मीनिंग क्या होता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस में हैं और मैन्युफैक्चरिंग हम मेंटेन कर रहे हैं टाली से, इन दैट केस क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या पार्ट होता है? एक कंपोनेंट होता है, एक अकाउंटिंग का पार्ट होता है, जिसमें हम जो भी हमारे बिजनेसेस में हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसके अंदर हमें कितना हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स पे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कितना लेबर हमें लगने वाला है, कितना मटेरियल रॉ मटेरियल हमें लगने वाला है, उसका कंप्लीट एक समरी होता है कि हमें क्या क्या एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने में कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, या फिर क्या क्या हमें उसमें जरूरत होगी चीजों की, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लेबर उसमें हमें, कितना एक्सपेंसेस लगेगा, ये कंप्लीट डिटेल आपको बिल ऑफ मटेरियल में प्रोवाइड हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप. In manufacturing assemble organization, there are number of components that go into the manufacturing assembling of finished goods. Once the bill of material is created, you can use manufacturing journal and specify the quantity of finished goods that are to be manufactured. Manufacturing journal voucher क्या होता है कि exactly जब भी हम bill of material create होने के बाद हमें कितना bill of manufacturing journal से हम specify कर सकते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमारे पास है उससे हमें कितना फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, कितना फाइनल प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, ये हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप से कंप्लीटली जान सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर. You can create manufacturing journal and enter detail of the component used to be produced in finished goods, co-product, byproduct, scrap produced during the manufacture the finished goods. Record of manufacturing जो होता है ये हमें already tally में available नहीं होता है, we have to create that. Okay, वो create करने के बाद हम अब उसके अंदर maintain कर सकते हैं कि जितना हमारा raw material inward हुआ था उसके against में हमारे पास कितना quantity pending है, या फिर हमने उस raw material में से कितना हमने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हम कर चुके हैं, हमने कहाँ से उसे असेंबल किया है. तो कम्प्लीटली ये डिटेल्स हम रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में मेंटेन कर सकते हैं. तो ये था कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने कई सारी चीजें जानी है कि हमें कैसे मेंटेन करना है, क्या रॉ मटेरियल्स के बाद फिनिश का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हमने देखा है. तो अभी हम जाएंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट प्रैक्टिकल सेशन. So that's it from my side, ma'am. Thank you, Simran. Very nice presentation. Hello everyone, welcome to Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Before going to start the practical session, I want to introduce myself. My name is Krishna Rane from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Let's start the practical session. We are going to cover how to set manufacturing process in Tally Prime. तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम Tally Prime में कैसे यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मुझे एक कंप्यूटर, मेरा एक आईटी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ. उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम Tally Prime में कैसे सेट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं लाइव डेमो. यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Your screen is visible, ma'am? Yes, it's visible, Krishna. Yes, ma'am. Thank you. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ. मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हम Tally Prime में कैसे सेट कर सकते हैं
तो चलिए देखते हैं लाइव डेमो। यहाँ पे देख सकते हो मैं IT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक मैंने कंपनी क्रिएट की है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एक होता है अपना रॉ मटेरियल और एक होता है अपना फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करेंगे, दो स्टॉक ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो ERP नैनो और टैली प्राइम ने जिन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, तो जो भी डिफरेंस है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जो भी हमारा अकाउंट्स इनको इन्वेंटरी इनको यहाँ पे हमें पहले शो होता था ERP 9 में, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली जाना है क्रिएट में। हम जाते हैं स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले हमको क्रिएट करना है यहाँ पे रॉ मटेरियल। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, इसको हम यस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनिश गुड्स। इसको भी हम सेम एज इट इज यस करेंगे। ये तो हो गया मेरा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स। जो भी मेरा यूनिट्स है यहाँ पे नंबर्स में, नोज में, तो यहाँ पे मैं नोज में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे सेम नंबर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं गोडाउन। अगर आप कंपनी गोडाउन यूज करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, तो यहाँ से आप गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। टैली प्राइम ERP 9 में हमको ये यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन यहाँ पे शो होता था, लेकिन यहाँ पे टैली प्राइम में आपको लोकेशन डायरेक्टली दिया है। तो यहाँ पे मैं तीनों गोडाउन जो है मेरे क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल गोडाउन, नेक्स्ट मेरा होगा असेंबलिंग गोडाउन। नेक्स्ट है मेरा फिनिश गोडाउन। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले स्टॉक ग्रुप का प्रोसेस हो गया, यूनिट्स का प्रोसेस हो गया, लोकेशन का भी दैट इज गोडाउन का प्रोसेस भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक आइटम। अब बनाते हैं हम स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे मेन वर्क है हमारा, जो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में उसको कंटिन्यू करने वाले। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे मुझे जरूरी होती है, वो स्टॉक आइटम मुझे यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। लाइक मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो चलिए चलते पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करके लेते हैं। सेम हमको यहाँ पे आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ मदरबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट नंबर का ऑप्शन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ भी जो भी अपने पार्ट्स है कंप्यूटर के या आपके जो भी गुड्स का स्टॉक आइटम का पार्ट्स नंबर रहेगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ही F12 करके इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। प्रोवाइड यस करना है, मास्टर में शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी अपना मदरबोर्ड का कंपनी हो भी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट अंडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने ग्रुप यहाँ पे पहले बनाया था फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पे मुझे ये मेरा कंप्यूटर बनाने के लिए ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो मैं इससे रॉ मटेरियल में सिलेक्ट कर देता हूँ। यूनिट्स, जैसे मैंने आपको बोला नंबर्स, मेरा जो यूनिट्स है मेरा नंबर्स में है, तो यहाँ पे मैं उसको नोज में नंबर्स में सिलेक्ट कर देता हूँ। ये बिल ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट मैं आपको बाद में क्लियर कर देता हूँ। GST यहाँ पे फिलहाल नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, रॉ मटेरियल का जो मेरा स्टॉक आइटम है जो भी है मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। नेक्स्ट है मेरा मॉनिटर। सेम एज अ रॉ मटेरियल में लेना है, नंबर्स में लेना है।
यहाँ पे आप जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कंट्रोल ए से भी आप शॉर्टकट यूज करके सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा कीबोर्ड। रॉ मटेरियल में लेंगे, नोस में सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक आइटम माउस। अंडर रॉ मटेरियल नंबर्स में इसको कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रैम। तो इसी तरह से हम रॉ मटेरियल में सिलेक्ट करेंगे, नोज में लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो जो भी है मेरे स्टॉक आइटम यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो इसको मुझे देखना है तो अल्टर में जाके, स्टॉक आइटम में जाके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और अल्टर भी कर सकता हूँ। जो भी मेरे 5 रॉ मटेरियल है यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिए। अभी मेरा क्या होगा, इससे फिनिश गुड्स एक क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं फिनिश गुड्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जो कि मेरा वो कंप्यूटर है। यहाँ पे सबसे बढ़िया ध्यान देना, भी जो भी पूरा टैली का मेन है बिल ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर यहाँ पे स्टॉक आइटम मैंने फिनिश गुड्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश गुड्स में अंडर में इसको ले रहा हूँ। जो भी मेरा रॉ मटेरियल था मैंने रॉ मटेरियल के अंडर में लिया, लेकिन ये मेरा फिनिश गुड्स है तो मैं इसको फिनिश अंडर ले रहा हूँ। यहाँ पे नोज में ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको समझो कंपनी को एक बैच नंबर भी देना है, इस कंप्यूटर को हमको बैच नंबर देना है। तो सीधा हम यहाँ से F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है एनेबल बैचेस। तो इसको हम जैसे यस करेंगे तो ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी बैच आपने इस्तेमाल किया था वो बैच नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको मैं यस कर देता हूँ। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बोला था ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो यहाँ पे तो नहीं डालेंगे, लेकिन जो भी कुछ ऐसी चीजें रहती है, जो भी कुछ गुड्स रहते हैं ऐसे जिसको एक्सपायरी डेट भी रहती है, तो यहाँ पे भी हम टैली में उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, जैसे सिमरन मैम ने बोला, जो भी हम क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट का फिक्स रहता है। अभी कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे ये 5 पार्ट जरूरी है, इसको मैंने बना लिया, तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। चलो लाइव सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। कभी कभी ये ऑप्शन हमको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, तो फिर से ये नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो हमको सीधा F12 में जाना है। यहाँ पे आपको देख सकते हो सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। बस जैसे आप यस करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, ये आइटम यहाँ पे आपको, ये फीचर्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम बिल ऑफ मटेरियल को यस करते हैं, यहाँ पे आपको एक जो भी बिल ऑफ मटेरियल आप बना रहे उसको एक नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ, जो मेरा फिनिश गुड्स है उसका नाम देता हूँ कंप्यूटर। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को बिल ऑफ मटेरियल को नाम दिया, यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक क्वांटिटी मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या स्टॉक आइटम मुझे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे मुझे सेट करना है लिमिट। जैसे कीबोर्ड है, वो मैं अभी पहले मैंने जो लिया था रॉ मटेरियल के गोडाउन में लेऊंगा, लेकिन असेंबल करते समय मुझे यह बिल ऑफ मटेरियल से असेंबलिंग गोडाउन में यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हमको लगेगा मॉनिटर। एग्जैक्टली क्या होता है, कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे जो भी पार्ट्स लगते हैं वो कितने क्वांटिटीज और कौन कौन से पार्ट है मुझे लगने वाले, यहाँ पे हम सेट करेंगे। मॉनिटर असेंबलिंग गोडाउन, इसको यस करेंगे। क्वांटिटीज में एक लेंगे मदरबोर्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी ये सब चीजें मैंने एक एक नोज लिया है, लेकिन मुझे समझो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे 2 रैम चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसको 2 में डिफाइन कर देता हूँ नंबर्स में, और इसको सेव कर देता हूँ। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। अभी तक एग्जैक्टली हमने क्या देखा, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया, स्टॉक आइटम क्रिएट किया, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया। तो इसके बाद अभी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक आइटम है, लेकिन उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है मेरे गोडाउन में। तो सबसे पहले हमको एक परचेस का एंट्री पास करना होगा। वाउचर्स में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, समझो मैं यहाँ पे कैश पे ये परचेस कर रहा हूँ।
फिर से मुझे जो भी है मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। लोकेशन में यहाँ पे जिन्हों में तीनों मैंने जो गोडाउन क्रिएट किए थे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ रॉ मटेरियल के गोडाउन में। तो मैं जो कीबोर्ड का मेरा क्वांटिटी यहाँ पे मैं सब क्वांटिटी लेता हूँ और रेट रहेगा 250। यहाँ पे आपको जो भी है परचेस कर रहे हो तो अंडर परचेस अकाउंट में जाएगा। ये परचेस का लेजर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर में भी लोकेशन मुझे एज इट इज रॉ मटेरियल रखना है, क्वांटिटी सब लेना है। मॉनिटर का कॉस्ट है मेरा 6000। ये भी अंडर परचेस आएगा। नेक्स्ट मेरा है मदरबोर्ड। लोकेशन यहाँ पे रॉ मटेरियल एज इट इज रखने का है। मदरबोर्ड का जो मेरा कॉस्ट है 10000 अंडर परचेस। नेक्स्ट है अपना माउस। लोकेशन रॉ मटेरियल। अंडर परचेस। लास्ट है मेरा रैम। रैम का कॉस्ट है मेरा 800 रुपीज। तो यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स है यहाँ मैं सिलेक्ट कर दिए और परचेस भी किए अंडर रॉ मटेरियल गोडाउन में। नेक्स्ट हम देखते हैं F7 भी शॉर्टकट की है और F7 में जो एरो दिया है वहां से आप यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक ट्रांसफर। जो हम स्टॉक क्रिएट किया है, अभी जो स्टॉक परचेस किया उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। चलो, जो मेरे कीबोर्ड्स है यहाँ पे समझो मैं रॉ मटेरियल में मेरा 100 नंबर्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है मेरा मॉनिटर। अंडर आएगा रॉ मटेरियल 50 क्वांटिटीज। मदरबोर्ड रॉ मटेरियल 50 क्वांटिटीज। ये भी 50 क्वांटिटीज। लास्ट है मेरा रैम। तो इसको मैं 100 डाल देता हूँ। अभी ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड में मैं कौन से गोडाउन से ट्रांसफर कर रहा हूँ और किधर मेरा लोकेशन डेस्टिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं असेंबलिंग गोडाउन में इसको और ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो जो क्वांटिटीज है मैं एज इट इज डाल दूंगा। मॉनिटर 50 क्वांटिटीज। मदरबोर्ड फिफ्टी क्वांटिटीज। लास्ट है मेरा रैम। यहाँ पे मैंने 100 लिया था, 100 क्वांटिटीज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये एंट्री था मेरा स्टॉक गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर का। जो मेरे परचेस का एंट्री मैंने किया था, जो मेरे रॉ मटेरियल के गोडाउन में मेरा आया था, मैंने ट्रांसफर कर दिया असेंबलिंग गोडाउन में। तो इसका रिपोर्ट हम जाके अल्ट जी भी कर सकते हैं यहाँ से और डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। गो टू पे जाते स्टॉक समरी रिपोर्ट। जिन्होंने अभी तक टैली प्राइम अपडेट नहीं किया है उनको ये फीचर्स नहीं दिखेगा। जैसे टैली प्राइम में आप देख सकते हो ऊपर मुझे अल्ट जी भी कर सकता हूँ मैं शॉर्टकट। यहाँ पे स्टॉक समरी का रिपोर्ट मुझे जो भी है मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे
आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे सर्चिंग इंजन भी दिया है। तो स्टॉक समरी में हम जाते हैं फिलहाल। रॉ मटेरियल जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट एंटर में जैसे कर रहा हूँ जो भी स्टॉक आइटम है, तो यहाँ पे आप गोडाउन वाइज रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जैसे कीबोर्ड में है मेरा असेंबलिंग गोडाउन, रॉ मटेरियल गोडाउन, तो मेरा कितना क्वांटिटी ट्रांसफर हुआ है, कितना क्वांटिटी उसमें है एग्जैक्टली करंट क्वांटिटी आप गोडाउन में भी यहाँ पे गोडाउन वाइज आपको समरी शो हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कैसे करेंगे टैली में। ये तो हो गया मेरा बिल ऑफ मटेरियल सेट हो गया, मैंने स्टॉक भी ट्रांसफर कर दिया रॉ मटेरियल के गोडाउन में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, हम एंट्री कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ पे क्या रहता है टैली में, ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपका रेडीली यहाँ पे फीचर्स नहीं रहता। आपको सबसे पहले जाना होगा क्रिएट में, वाउचर टाइप्स में। यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ पे आपको अंडर लेना है स्टॉक जेबी, दैट इज स्टॉक जर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसका मतलब क्या रहता है, ये वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास करने के लिए इसका मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं यस करूंगा। ये ऑप्शन आपने नो यस नहीं किया तो वहाँ पे आपका एंट्री पास नहीं कर सकते, ये वाउचर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकता। वहाँ पे कंट्रोल ए से इसको मैंने सेव किया। तो चलो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं वाउचर में जाता हूँ, जैसे मैं F10 भी प्रेस करता हूँ तो भी मुझे ये वाउचर डिस्प्ले हो जाएगा। Alt F7 भी दबा सकते हैं आप, तो ये आपको ये शॉर्टकट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये वाउचर को आपका शॉर्टकट की यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था बिल ऑफ मटेरियल में हमने कंप्यूटर लिया था, उसको क्या क्या पार्ट्स लगेंगे सेटअप किया था। तो चलिए देखते हैं लाइव इफेक्ट क्या होता है इसका बिल ऑफ मटेरियल का। नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंप्यूटर। लोकेशन, ये मुझे कहाँ पे ऐसे कौन से गोडाउन में ये फिनिश गुड्स आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फिनिश गुड्स के गोडाउन में। तो जो भी मेरा फिनिश गुड्स है मुझे यहाँ पे फिनिश गुड्स के गोडाउन में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने कंप्यूटर लिया, नीचे मेरा कंपोनेंट्स में जो भी कीबोर्ड्स है, मॉनिटर्स है, मदरबोर्ड है, माउस है, अभी तक क्वांटिटी नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। 25 नंबर्स मुझे कंप्यूटर से यहाँ पे असेंबल करने हैं, सेटअप क्रिएट करने हैं। तो जैसे मैंने बिल ऑफ मटेरियल वहाँ पे सेट किया था, तो वो हिसाब से मैंने 25 क्वांटिटी यहाँ पे सेट किया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, इसका कंपोनेंट्स कंजम्पशन कितना होगा मेरा रॉ मटेरियल का, ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बिल ऑफ मटेरियल में ये लिमिट सेट किया था। तो यहाँ पे आप ये कंप्यूटर को जो है बैच नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया बैच नंबर। तो यहाँ पे है मेरा जो फिनिश गुड्स हो गया मेरा 25 कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप जो भी एडिशनल कॉस्ट है, अभी यहाँ पे समझो ये मेरा वेजेस में गया, इसमें फॉर एग्जांपल जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस है यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ, समझो वेजेस का है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेता हूँ। तो ये कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे कितना वेजेस मैंने पे किया, यहाँ पे आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो, डायरेक्टली प्राइस भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्राइस डालता हूँ 20,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्यूटर मुझे बनाने के लिए जो कॉस्ट आया 18,800, और पूरा मेरा टोटल एडिशनल कॉस्ट पकड़ के मेरा कितना कॉस्ट हो रहा है यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंट्री मेरा टैली प्राइम में। इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलो देखते हैं इसका इफेक्ट हम स्टॉक समरी में कैसे देखते हैं। Alt G करेंगे, गो टू पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, स्टॉक समरी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश गुड्स में मेरा जो भी है 25 नंबर से यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। जैसे मैं शिफ्ट एंटर कर दे, कंप्यूटर्स मेरे जो है फिनिश गुड्स यहाँ पे 25 एज ए फिनिश गुड्स में आ गए। रॉ मटेरियल जो मेरा कितना अभी कंज्यूम हुआ है, कितना मेरा बचा है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
जैसे हम शिफ्ट एंटर करेंगे वो यहाँ पे आपको शो करते जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो भी असेंबलिंग गोडाउन में कितना पार्ट्स मेरा पड़ा है, रॉ मटेरियल्स में कितना क्वांटिटी है, यहाँ सब जो भी प्रोडक्ट वाइज है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो जैसे F7 पे आप क्लिक करेंगे या शो प्रॉफिट करेंगे, आपको प्रॉफिट भी स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्ले में जाके यहाँ पे इन्वेंटरी बुक्स और बैच रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बोला था ये बैच कौन से कंप्यूटर का, किसी ने बोला समझो एक कंप्यूटर मेरा जो क्वालिटी निकाला जो कुछ पार्ट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप बैच वाइज उसको सर्च कर सकते हो, कौन से तारीख को मेरा बैच क्रिएट हुआ था, जो भी है यहाँ पे आपको क्लियर कट सब रिपोर्ट मिल जाएगा। तो बैच वाइज आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेटअप करके आप टैली प्राइम का बेनिफिट ले सकते हो और इजीली अपना इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हो। इट्स डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। Thank you so much, Krishna. It was really a wonderful explanation. आपने जो हर एक step by step जो explain किया, I think things would have been really clear to the audience and the spectators here. But anyways, on to this, like एक छोटा सा हम like along with this demo and presentation, हम एक over recap भी जल्दी से ले लेते हैं ताकि we can connect with the demo and with the presentation. So, Mr. Bhagwati, are you here? Yes, I am available. यस सो मिस्टर भगवती, जैसे हम देख सकते हैं अभी प्रेजेंटेशन हुआ, साथ साथ हमने डेमो के साथ बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर लिया है। सो आई थिंक इफ यू जस्ट गिव अ शॉर्ट ओवर रिकैप ऑन टू दिस, आई थिंक इट वुड बी वेरी feasible and easy to the spectators as well, to the clients who are present here, ताकि वो डेमो और प्रेजेंटेशन के साथ कनेक्ट करके और भी एडिशनल चीजें वो सीखे यहाँ। सो इट्स completely over to you, Mr. Bhagwati. You can just give an over recap here. Yeah, thank you, Deepa. So, I'm Bhagwati Jhandaria from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, this is a very good evening, everyone. And this is a complete manufacturing process in the Tally Prime. Normally, people are aware, people are using in the trading purpose. Tally mostly people are using for the trading purpose and accounting purpose. But Tally Prime is very useful in the manufacturing process also. जहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लाइक रॉ मटेरियल्स, आप कोई एक रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहे हो, दैट इज एन डिफरेंट यूनिट लाइक दैट कि लीटर मीटर एंड अनदर यूनिट टाइप में आ रहा है। देन यू आर डूइंग द असेंबलिंग, लाइक कुछ मैन्युफैक्चरिंग में मशीनों के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ द टेक्सटाइल यू आर जस्ट बाइंग द यार्न, देन धागा बना रहे हैं, धागा बनाने के बाद में आप कपड़े बना रहे हैं, लाइक दैट, एंड एवरीथिंग इज अ डिफरेंट यूनिट प्रोसेस। तो जो यूनिट का जो प्रोसेस है और इसके बाद में जो सेमी फिनिश जो बनने का प्रोसेस है, आप यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से प्रोसेस को डिफाइन कर पाएंगे। और उन प्रोसेस को डिफाइन करते हुए आप अपनी इन्वेंट्री को आप यहाँ देख पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी इन्वेंट्री मेरी कौन से स्टेज पे पड़ी हुई है। कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। जैसा कि कृष्णा ने आपको बताया, उसने एक स्टेज आपको बताया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक स्टेज भी होता है। इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो बेसिस कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक स्टेज है, कोई प्रोडक्ट बनाने में आपके 5 स्टेज हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने में आपके और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। आप एक प्रोडक्ट बनाने के बाद में 2 स्टेप के बाद में अपने प्रोडक्ट को बाहर किसी को जॉब वर्क के लिए दे रहे हैं और वो जॉब वर्क होकर के आता है, फिर आप तीसरा चौथा स्टेज कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। तो ये जो सिनेरियोज बेस्ड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो हम यहाँ बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाते हैं। और इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्ट्स, आज हमारे पास ये पता नहीं होता कि हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री कितनी है और हमें रीऑर्डर कितना करना है, हमारा रॉ मटेरियल्स कितना कंज्यूम होने वाला है, हमारे पास कोई एक ऑर्डर आया है उसके लिए पीछे हमारे पास रॉ मटेरियल्स है या नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑर्डर्स हमें डिलीवर करना है तो हमें रॉ मटेरियल्स कब मंगाना चाहिए, उसका फोरकास्टिंग क्या होना चाहिए, वो सभी चीज़ों को भी हम लोग टैली प्राइम के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। जहाँ पर हमें कंप्लीट क्लियर पिक्चर मिलती है
कि आज हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं, इस टाइम में डिलीवर करने हैं, इस टाइम में डिलीवर करने हैं, तो हमारे पास हमें रॉ मटेरियल्स हमें क्या क्या मैनेज करना होगा। और जो रॉ मटेरियल्स हैं, अब एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स लगते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी में लगते हैं। आज कई ऐसे स्टेज है जहाँ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई एक मान लीजिए कोई एक स्टील का बर्तन बना रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है कि सेम सस्पेंस या प्रोडक्ट बनाने के लिए या कप बनाने के लिए हमें थोड़ा लाइट वेट में बनाना है। क्वांटिटी वही होगी, कप वही होगा, लेकिन लाइट वेट होगा, 50 ग्राम्स, 60 ग्राम, 55 ग्राम्स। तो वहाँ मल्टीपल बॉम्ब्स होते हैं, जहाँ बिल ऑफ मटेरियल्स इसको हम बोल रहे हैं, तो हम वहाँ मल्टीपल बॉम्ब भी मैनेज कर पाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिनारियो जो है ना, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिनारियो यू कैन आल्सो मैनेज इन द टैली ERP 9। सो ये इन सिनारियो में हमें मटेरियल मैनेजमेंट लगता है, बजटिंग मैनेजमेंट लगता है, स्टॉक की पिक्चर क्लियर चाहिए स्टेज वाइज। ये सभी चीज़ों को हम टैली प्राइम में बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे। और आफ्टर दैट फिनिश्ड वी ऑल्सो वांट टू प्रोसेस द सेल्स, जो कि आप सब लोग एवरी डे कर रहे हैं। यू आर मेंटेनिंग द योर सेल्स थ्रू द सेल्स वाउचर, ऑर्डर लेवल्स, डिलीवरी नोट through the sales voucher, all the tracking is also available in the Tally Primes. इसके बाद में उसके compliance and everything is there. So you can manage your manufacturing process, reorder level, sales cycles, purchase cycles, and after that accounting and outstanding bill receivable and payable management. ये सभी चीजें एक सिंगल स्टेप पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी इजी गोइंग करने को मिल जाती है, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। और आप ये सभी रिपोर्ट्स को आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन द सेम फॉर्मेट जो आपको टैली प्राइम में सामने से दिख रहा है। और उसकी रिपोर्ट को आप अपने हिसाब से टैली प्राइम में भी आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को कस्टमाइज कर पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फीचर चाहिए टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या कोई भी प्रोसेस में, तो आप टैली प्राइम को बहुत इजी वे में आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, जिसके लिए राजलक्ष्मी की टीम भी आपके साथ है। तो इट्स अ वेरी इजी टू कस्टमाइज योर टैली अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीपा। सो इट्स ओवर टू यू। Yeah. Thank you. Thank you so much, Mr. Bhagwati. Yeah, thank you. Yeah, it was really pleasure having the wonderful scenarios जैसे कि आपने जो भी बताया, whether it might be about the weight or the process of the system. I think बहुत सारी चीजें would have really got connected to the people as well, and this would really be a very productive. So thank you so much for your wonderful add-on and the additional information onto this webinar. Well, I think people, this would really be very helpful एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी सिस्टम होती है, फिर उस प्रोसेस के लिए कैसे करना है, क्या करना है, एंड हाउ दिस कैन बी मैनेज्ड एंड मेंटेन। बहुत सारी चीजें इस वेबिनार पे बोला गया है। एंड यस, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आई थिंक लेट्स गो ऑन टू दिस सेशन, मिस्टर भगवती, कैन वी? Yeah, so let's see if they have any questions. Let them update in the comment box. अगर आप में किसी को भी कोई भी questions है तो request you to please update into the comment box. हम एक short brief उसके ऊपर ले लेते हैं, या फिर हम उसकी एक वीडियो बना के जरूर हम अपने YouTube चैनल पे डाल देते हैं। तो इसके लिए आपको जरूर फॉलो करना है हमारे YouTube चैनल एंड ऑल सोशल मीडिया साइट्स, बिकॉज दिस लाइक करंट सिनेरियो एंड द फ्यूचर इज कंप्लीटली गोइंग टू बी द डिजिटल वर्ल्ड। हम सामने ऑफिस प्रीमाइसेस को देखें या फिर इंसान को देखें, बट इट इज it is going to be very productive if we are active onto the social medias and the digital platform. So be active onto the social media and digital platform. All right. So Mr. Bhagwati, keep checking if there is any questions. Request you to please update me.
No, Deepa, I think that Krishna has done very good presentation and Yes, practical very session. true. That's why I think no one had any questions. Yes, actually, he explained very well. Choti choti चीजों को भी like he took time and he gave a space there. So Yeah. it would have given a very good opportunity to understand. But anyways, no issues. मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी अपडेट करना चाहती हूँ. पहली चीज तो ये है कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट्स है तो बाय कपल ऑफ डेज दिस वीडियो विल बी अपडेटेड इनटू यूट्यूब चैनल. तो आप जरूर यूट्यूब चैनल वॉच कर लीजिएगा ताकि आपकी डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएगी. In case if your doubts are not clear, request you to please connect your account manager or आप just जाइए गूगल में और टाइप कीजिए राजलक्ष्मी वर्ल्ड. आपको बहुत सारे नंबर्स वहां पे मिल जाएगा. So connect us and I think you can clear your doubt. और हम फिर से इसके ऊपर आपके इंडस्ट्री आपके सेक्टर के हिसाब से भी हम आपको डेमो दे सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. Yes, as the manufacturing process depends on the organization, this is completely customizable, and at the same time we are here to customize as per your requirement. आपके flexibility के हिसाब से हम करेंगे ताकि आपकी working style and structure smooth हो जाए और productive हो जाए. This is what our satisfaction when the customer is really wanting some of the like important features or important process for their organization. Well, as I said, I'm going to give a very important thing. So stay tuned till the end of the webinar. Yes, I'm here with an update that is like this is Navratri a week I can say, and बहुत सारी Navratri special जो है like offers चल रही है. And yes, I must say Rajlakshmi Solutions Private Limited is also having a Navratri week special offer onto product, onto services, onto HR and digital marketing services, as well as onto cloud services. तो मैं आपको ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि this is the right time, grab the right opportunity. The complete 7 days we have an offer. So request you to please connect us, connect your account manager, or check out our social media channels to know about the offer. If you didn't find any kind of like option what you exactly wanted, please आप हमें कॉल कर दीजिएगा. हम जरूर आपको कुछ ना कुछ इस नवरात्रि स्पेशल के मौके पे हम आपको कोई ना कोई जरूर ऑफर प्रोवाइड कर देंगे. All right, I think things are really running in a smoother way. So to just answer your questions and to accept your questions and suggestions. Yes, इसके साथ साथ मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे. अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर वेबिनार देखना चाहते हैं, अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली कोई चीज को जानना चाहते हैं, तो यू कैन सजेस्ट अस द टॉपिक सजेशन एज वेल. सो टॉपिक सजेशन जो है हाईली डिमांडेड देखा जाएगा और वो टॉपिक जो है आपको प्रेजेंट किया जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you everyone for your wonderful time here, space here. Specifically, a special thanks to the presenter, Ms. Simran and Mr. Krishna. We really had a great time at your presentation. And a special thanks to Mr. Bhagwati. Thank you so much for your wonderful add-on here. And a special thanks to all the spectators who really gave your time and space. As I already said, that is the more productive thing what we get every week. So that's it. Thank you so much and stay tuned on to Rajlakshmi Solutions. See you soon in the next webinar. Take care and bye-bye.